Okay, so welcome to the very fourth episode of Conversations Unfold with Fatima. Today we are diving into a very interesting topic जो हसाम ने मुझे personally recommend की है because he was very enthusiastic to talk about it कि the future of work कि a matter of focus कि मतलब how technology, culture and people are reshaping it and what it means in the world of work. So to help us unpack this without wasting any further time, we are joined by a very special guest, Hassamur Rahman. He is Global Lead Talent and Business Operations at Nectar Social. I think it's a very growing startup right now. So please tell more about on this startup, Hassam. And he's a dynamic lead known for his innovative approach to people, culture and future of work. So Hassam, we are so happy to have you on our episode. तो आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं and then we can further dive into the questions. Awesome. Hello everyone. Thank you so much, Fatma, for having me tonight. And I really appreciate all of the kind words. So a little about me. I'm from FC. I graduated in 2022, same batch as Fatma. So after that, during my last semester, I got an opportunity at a software company by the name of Contour. I got a chance to work there as a project trainee for a couple of months. After that, I got an opportunity at Educative. Educative is basically an edtech company. So I got an opportunity over there in talent acquisition. So I got a chance to work there for around just north of 2 years. I got to lead talent operations over there. I got to work with the people's team, got to experience some onboardings as well, manage some employer branding activities. So got a lot to learn over there. After that, I got approached by Nectar. Nectar is basically an AI-empowered community management platform for B2B brands in the US. So we have clients like Unilever, like L'Oreal, like Kosas Cosmetics, Her Beauty, around these lines. And we're proactively looking to expand. From my perspective, I look after both talent acquisition and global operations, all in all, हर किस्म के. अच्छा, the both sides. So that is. दोनों sides. बिल्कुल. Great. बिल्कुल. I think you have a very diverse skill set when it comes to switching companies, and it helps you to have a proper package of HR skills जो कि आप एक dynamic environment में use कर सकते हो. तो हम इसी से फ्यूचर वर्क को भी रिलेट करेंगे कि वेदर रिमोट, हाइब्रिड या ऑन साइट, कौन कौन सी स्किल्स आपको हर तरह की सेटिंग में चाहिए होती हैं टू सर्वाइव, बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट सेटिंग्स डिमांड डिफरेंट स्किल सेट एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन अप्रोचेस. तो थैंक यू सो मच हसाम फॉर अ लवली इंट्रो. एंड नाउ डाइविंग इनटू पार्ट 1 जिसको मैंने नेम आउट किया द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ वर्क ओवर द पास्ट डेकेड? Okay, so Fatima, when we're talking about more specifically these past 5 years, if we talk about the general the first decade of work that we've experienced, like our generation has experienced, that would be post, I believe, 2015, 2016, when we got a chance to see how the work was going around us. So we've seen that there was an immense growth in the tech sector. And what we've seen over here is that the pattern of work and the general work ethic over time has evolved. In the first 5 years, it was very slow and progressive, and we saw gradual growth in it. But once we see the post-COVID wala era, we see that there is a lot that sped up very rapidly. उसके लिए ये है कि if you see this from your perspective or from my perspective, there was never the idea of studying from home. We got to experience that. We got to understand how remote meetings are scheduled. हमने उसके हिसाब से discipline develop किया. We made sure कि even in companies, in a lot of companies, हम लोगों ने ये देखा है कि instead of just being process oriented, they have become more outcome oriented. And outcome oriented वो किस तरह से कि यूएस में अगर कोई बंदा बैठा तो उसने सारा काम पाकिस्तान को आउटसोर्स कर दिया. This globalization wasn't existent before COVID, I believe. उसमें a lot of freelancing opportunities came out. उसमें a lot of different working styles came out. So when we're talking about maybe any type of job जिसमें hybrid हो, जिसमें fully remote हो, जिसमें on-site हो, I believe I completely agree with you over there. It completely depends on the nature of the job, and it also depends on how
you are expected to perform in that job. So like accordingly हो जाता है. Like अब कुछ jobs होती हैं जो कि आप घर से बैठ के कर ही नहीं सकते. जिस तरह से अगर आपकी product sales की होती है, they cannot be done at home. True. तो अगर कोई SaaS sales की होती हैं तो obviously you can like work from home उसके अंदर. Motive की जिस तरह की sales होती हैं या फिर even किसी भी tech company की sales होती हैं. बिल्कुल ऐसे. They're totally different. They're totally different. Perfect. I think you have perfectly mentioned कि ये settings हैं और हम इस तरह इसको जो है देख रहे हैं evolve होते हुए future work को. अच्छा, इसमें एक जो 9 to 5 traditional job जो हम Gen Z को बड़ा issue है 9 to 5 से, मतलब corporate slavery से, तो आपको लगता है कि traditional 9 to 5 jobs are fading and it's more switching towards 4-day work week or flexible work week कि आपने बस काम करना है, जैसे आपने कहा outcome oriented, प्रोसेस ओरिएंटेड से आउटकम की तरफ जा रहा है, तो वट एवर योर प्रोसेस है बस आपने अपने आउटकम्स डिलीवर करके देने. Yes, definitely. Agar if I would want to answer this question, I would answer it in the approach that it actually depends on how the company lead is visualizing the company. Are they more process oriented or are they more outcome oriented? Outcome oriented. If they are more process oriented, तो फिर उनके ज़हन में भी वही पुरानी अप्रोच होगी कि like हर चीज का SOP डेवलप हुआ हो, उसी के अकॉर्डिंग चीज चल रही हो. No one will be bending rules for anyone. True. And like here, that is an approach that is working for a lot of organizations, जिस तरह से banks के लिए, insurance companies के लिए, and maybe वहाँ पे that stuff is needed. जिस तरह से like we don't want our bank वाले to be या any insurance company या any government office to be available all around the clock या फिर like वो flexibly काम करें. We would want them to be available in a specific time frame. Specific time. Like if we compare that for tech companies or maybe other companies, we do see that there is a future of flexibility. In terms of how they are working, in terms of from a manager's perspective, reevaluating performance management as well. Like, what is your definition of discipline? What is your definition of trusting teams? What is your definition of getting work done? Yeah, true. ठीक है, I think makes sense. अच्छा, इसमें अभी जो AI का एरा एक आ रहा है, आप खुद एक AI मतलब फील्ड में काम कर रहे हो and you will be like talking on many topics on AI के हो क्या रहा है, अब फर्दर क्या है कि हम लोग किस तरह डील कर रहे हैं चीज़ों को. So AI चेंज किस तरह कर रहा है आपकी जॉब रोल्स को और आपकी इंडस्ट्रीज को? अच्छा, so there's going to be a very diplomatic answer for this. इसके अंदर ये है कि when we see from the tech perspective, we see कि a lot of jobs are being eliminated. There is no question in that. But at the same time, we are seeing that a lot of jobs, new jobs are being created for the same people as well. So when we are talking about general monotonous redundant jobs or redundant tasks managed करने वाली jobs, so yes, they are definitely being replaced. But slowly but surely, we are seeing that they are being replaced. And like obviously, I don't need to give you an example. You don't need to ask इसके अंदर की like which jobs I'm talking about. हाँ, definitely. कोई typical administrative jobs हैं, वही ज़्यादातर replace हो रही हैं. Definitely. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. But at the same time, I always suggest, and like I have always been suggested कि instead of being overwhelmed by AI या फिर like उस process या उस chain को तोड़ने की निस्बत या उससे डरने की निस्बत, just start and embracing it. Understand कि you as a person, maybe you come from an operational experience, ठीक है, like ops के management का experience या talent acquisition का experience. Why not start integrating data analytics या फिर AI into your work to understand कि what are your key performance indicators for this specific role? How can you potentially improve on some specific topic? And उसमें अगर आप किसी में lag कर रही हैं तो क्यों lag कर रहे हैं? Like what are the reasons for that? इंटरेस्टिंग. मतलब ये है कि अगर आप AI को समझ जाओ ना, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, ये वो, तो आप अपनी ही जॉब जो रिडंडेंट होने वाली उसको बचा सकते हो. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. I completely agree. That is what I'm saying. बिल्कुल. Perfect. ये तो आपने सही वो अच्छी टिप दी है लोगों को. ये होता है ना इंसाइट, जो लोग पैसे दे के देते हैं किसी को कि मैं तुम्हें $20 में एक चीज बताऊंगा. है शुक्र है मुझे चार्ज नहीं कर दी हसाम आपने $20. नहीं कर देंगे चार्ज. कोई ऐसा मसला नहीं है. परफेक्ट है. तो अच्छा, पार्ट 3 स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ये मेरा अपना बड़ा फेवरेट टॉपिक है. और आपको क्या लगता है, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स? लिस्ट ऑफ 5. सो लिस्ट ऑफ 5. ओके, ठीक है. इसमें फॉर मी सबसे पहला होगा अडेप्टेबिलिटी. देयर वुड बी अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, digital literacy, and maybe something that Ma'am Faiza always says कि
the ability to learn, to unlearn, to relearn. to relearn. Yeah, I always I think remember that these is three words at the back of my mind. True. Very okay, true. that is very important. Basically, all these things that I have just mentioned are more important than general static knowledge. हाँ Instead of like हम्म, आपने कह लें कि किताबों में क्या पढ़ा हुआ होता है, हाँ so एग्जैक्टली it's very important that you learn कि what's going on in the market मार्केट and में you क्या हो रहा है. learn to adapt yourself according to that. बिल्कुल. In my previous company उस तरह से काम नहीं हुआ करता था जिस तरह से अब वाली कंपनी में हो रहा है. I cannot say कि नहीं जी मैं तो नहीं आपके लिए काम करता. I need to make sure that I adapt according to that. एग्जैक्टली यू So नीड टू this is अडेप्ट टू द something that कल्चर. is very important. वही ना कल्चर आ जाता है ना बीच में. अब आप कल्चर खुद क्रिएट नहीं कर सकते. कल्चर होता है विजन के साथ इंटैक्ट. कंपनी का जो विजन होता है उसके साथ कल्चर जाता है. तो आप अपना कल्चर सब कल्चर नहीं बना सकते अनटिल अनलेस कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो हु गिव्स यू ऑटोनॉमी टू हैव योर टीम कल्चर. टीम कल्चर आपका डिफरेंट हो सकता है कंपनी से. ठीक है, रिसर्च R&D के लोगों का टीम कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज दे हैव हाईली इनोवेटिव प्रोसेस गोइंग ऑन. तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी चाहिए भी होती है. वो दोज आर द काइंड ऑफ पीपल व्हिच आई हैव आल्सो सीन. वो कहते हैं हमसे बहस ना करो, हमें पता है अपनी जॉब ज्यादा आप लोगों से ज्यादा. तो लीडरशिप भी उनसे बहस नहीं करती. बिल्कुल आई एग्री. तो आई वो कंप्लीटली scene- एग्री. बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप एग्जांपल दें सेल्स वालों की, सेल्स वाले बिल्कुल. आर वेरी कैली प्रोएक्टिव आउटगोइंग किस्म के इंडिविजुअल्स. बिल्कुल वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग फोक्स, दे आर आल्सो वेरी प्रोएक्टिव, दे आर वेरी आउटगोइंग. उनके पास लाइक दे आर ऑलवेज क्रिएटिव. मतलब कोई लाइक बोतल पानी की पड़ी हुई होगी उसके अंदर से लाइक हाँ उसकी ब्रांडिंग चेंज होगी, हाँ वो भी बैठ के बिल्कुल देखते हैं ये बिल्कुल. क्या है इसके पीछे. इंटरेस्टिंग तो आई इंटरेस्टिंग. कंप्लीटली एग्री ओवर देयर. वेरी नाइस. अच्छा, इसमें आपने जो है ना मुझे ये बताएं कि हाउ प्रोफेशनल्स जो हम लोग मतलब ऑब्वियसली विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वी बिकम प्रोफेशनल्स. तो हाउ वी कैन फ्यूचर प्रूफ आवर करियर्स कि हम जो है फ्यूचर के साथ इंटैक्ट रखें अपने करियर्स. फॉर एग्जांपल एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर हो आपके जहन में कि यार मैंने अभी मैं एसोसिएट हूँ, इसके बाद मैंने जो है मिड टीयर लेवल का कंसल्टेंट बन जाना है, फिर इसके बाद मैंने ये करना है. आपको क्या लगता है ट्रेजेक्ट्री साथ साथ पता चलती है या ट्रेजेक्ट्री बहुत सी चीज़ों से इम्पैक्ट होती है? Achha, for me, maybe some folks may disagree with this. This is going to be an answer that each individual person has different from the others. इसमें हसाम में ये चीज़ different sound इसमें है. सॉरी टू कट यू, इसमें चीज़ ऐड करूँगी क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होते हैं ना हसाम, हमें ना हम जब MT के प्रोग्राम में जाते हैं या जब हम बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, हमें बड़ी एंथुजियाज्म कि हम स्टार्ट करते हैं यार अब हमने ना ऐसे जाना है डायरेक्टर लेवल पे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोटिवेशन किल होती जाती है और आप कहते हो कि यार हम लोग बस एक रोल अच्छा हो और हम बस हमें ऑटोनॉमी हो. वो क्यों होता है? लाइक इज इट बिकॉज ऑफ द कल्चर और इज इट बिकॉज ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इशूज? क्या हो सकता है इशूज में? I'll start with the idea of how you can future-proof your career. फिर उसके बाद I'll move on to this specific section. I completely agree with what you're saying. I think if you want to future-proof your career, a few things that are very important are कि like you always need to be curious. मतलब एक जगह पे बैठना नहीं है, समझते रहने कि लाइक अगर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों है. अगर 4 स्टेप्स में हो रहा है तो हाउ कैन वी रिड्यूस इट टू मे बी 2 स्टेप्स. तो लाइक बी क्यूरियस एंड लाइक ऑलवेज इन्वेस्ट इन अपस्किलिंग. मतलब दैट इज समथिंग जिसमें कभी आपके पैसे जाया नहीं होते. ऑलवेज हैव कन्वर्सेशंस विद पीपल, ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम, ऑलवेज लाइक मेक श्योर कि you are researching on YouTube, on maybe you're researching forums, or maybe you're researching in terms of general conversation with people. तो इसके अलावा if we observe कि अगर ये दोनों चीजें आपके पास आ जाती हैं ना, you start developing a growth mindset. A growth mindset is not something that says कि जी मैंने A to Z point पे इस तरह से जाना है. The growth mindset basically tells you कि अगर A से आपने Z में जाना है, आपने क्यों जाना है. लाइक आर यू रियली वांटिंग टू गो देयर. ठीक है, हाउ कैन यू गो देयर. मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन यू कैन आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट यू हैव, एंड consistently you can seek new opportunities. Definitely. And like exposure for new technologies as well. If you're like into that idea of monotonous work, so there's nowhere you can go in life. Again, this is an example that I gave. An example that I gave to you like a few minutes ago कि अगर लोग एक ही जगह पे बैठना शुरू कर दें, वो विजन ग्रोथ का छोड़ दें,
तो आप ये देखिएगा कि आपको याद होगा आपके मेरे बचपन के टाइम के ऊपर, जिस वक्त के अभी भी वैसे बच्चे ही हैं, इतने बड़े तो नहीं हुए हैं, उसमें से आप नहीं, ये अब हमारे देखेंगे माँ कोई बाप हमें कोई बच्चे नहीं स्पेसिफिक, मानते ना, मसला ये है। कहते हैं टू टू हाँ दैट इज अ ओल्ड डिफरेंट प्रॉब्लम। टू ओल्ड टू एक्ट इमेच्योर वाला सीन है हमारा है। नहीं नहीं, आई स्टिल एक्ट इमेच्योर, मैं अभी जितना मेच्योर हूँ, मैं लाइक सेम जस्ट फॉर सेम जस्ट दिस कॉन्फ्रेंस हुई है, आई स्टिल एक्ट एग्जैक्टली, वेरी दैट्स द इमेच्योर। स्पिरिट, वही आपको जिंदा रखता है जिंदगी में ना, तो दैट्स गुड। सही बात है, वरना फिर यू विल स्टार्ट डाइंग। हाँ तो एग्जैक्टली। अच्छा, सो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको याद होगा कि नया नया सादा पे या मे बी जैज कैश या इजी पैसा हाँ के एप्स आई थी। हाँ बिल्कुल इफ बिल्कुल। पीपल हैड स्टॉप्ड इनोवेटिंग, तो अभी तक हम उन्हीं इंटरफेसेस के ऊपर बैठे हुए होते जो दो बैठे दो हुए घंटे हैं। रुक जाते थे। तो इंटरेस्टिंग। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक कंपनी, लेकिन ये हर ऐप के अंदर ये प्रॉब्लम पहले आता था। हाँ ट्रू। पीपल वर एलियन टू द आइडिया, लाइक एटलीस्ट मैं अपनी अगर बात करूं, माय फादर वाज एलियन टू द आइडिया ऑफ सेंडिंग मनी घर पे बैठे हुए किसी को। तो हाँ वो बिल्कुल सेड कि नहीं, बिल्कुल। इसमें मसले होते हैं, ये होता है, वो होता है, इस तरह से करके, स्कैम्स हो लेकिन जाते यू हैं हैव टू मेरे लर्न टू अपने अडैप्ट। फादर। ही स्कैम्स हो जाते हैं। हाँ ही रन्स अ बिजनेस, तो वो सारा काम अभी भी मैनुअल में, मैं कहती हूँ यू नीड टू ऑटोमेट इट, यू आर लिविंग इन द ऑटोमेशन एरा, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू कीप द ट्रैक रिकॉर्डिंग मैनुअल। ही इज लाइक, मुझे डर लगता है मेरे पैसे कहीं कोई खा जाएगा, स्कैम हो जाएगा और वो स्टक हो जाएंगे इन द पाइप। वो वही वाला माइंडसेट है कि देयर इज जनरेशन गैप। अब हम लोग नहीं डरते, हमें होता है आई मेरे एग्री। पैसे ना अपने बस भेज दें, हमारा काम खत्म हो, इसमें से हमें तंग ना करे कोई। तो ये वाला सीन है, बट नहीं यू नहीं, आई एग्री, वेरी ट्रू। I completely agree. This has been a problem for कह लें at least my household. उसमें ना हाँ ये वाला मसला तो बहुत ही ज्यादा आता है कि किसी को काम होगा, वो मेरे अब्बू को फोन करेगा, मेरे अब्बू कहेंगे हाँ चल सुबह आके ना पैसे ले लेना। वो हाँ। मुझे फोन करेगा, मैं कहूंगा अकाउंट नंबर भेज जल्दी। एक ही घर में देखो दो डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, और एक जो है वो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर है ज्यादा, एक जो है वो वही जो ओल्ड हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसके ऊपर है। बट कोई भी नहीं अच्छा बुरा डेफिनेटली तरीका नहीं है, डेफिनेटली, लेकिन हाँ हमने अपने उसके साथ मूव ऑन करना होता है, चेंजेस के साथ। दैट्स इम्पोर्टेंट। सही है। आई एग्री। परफेक्ट। अच्छा, इसमें जो मजे का क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है ना, हर कंपनी में ना लीडरशिप को लोग देखते हैं, यार इनके लीडर्स कैसे हैं। पर्सनली मैं भी ऐसे ही देखती हूँ कि मुझे बड़ा शौक होता है कि इस कंपनी का सीईओ कैसा है, उनकी क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि वही रिपल डाउन इफेक्ट होके ना नीचे एम्प्लॉयज के अंदर आ रही हुई होती हैं, मैनेजर्स के अंदर आ रही होती हैं। तो आप मुझे बताओ कि हाउ लीडरशिप हैज इवॉल्व्ड इन दिस न्यू वर्क एरा, ये जो हम हाइब्रिड पे शिफ्ट हो रहे हैं, रिमोट कल्चर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, किस तरह लीडरशिप किस तरह इवॉल्व हो रही है इसके साथ। अच्छा, आई थिंक कि समथिंग दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम इज वो जो एक अप्रोच होती थी जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं कि सेठ की अप्रोच जो होती है, हाँ दैट हैज स्लोली स्टार्टेड टू ट्रांजिशन लाइक एंड ट्रांजिशन। एंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो समथिंग दैट इज कह लें वेरी प्रिवेलेंट, जो मैं फील कर रहा हूँ कि इसके ओवर टाइम ये वाली चीज जो है ना, ये डेड होना शुरू हो जाएगी, एंड people will be more centered around the idea of instead of a person led company, a company led by person. तो हाँ ये ठीक वाली है। जो अप्रोच है ना, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये कि फॉर लीडरशिप्स आई थिंक some skills that are very important are always being proactive, हाँ always being very energetic। मतलब जितना मर्जी आप किसी मुसीबत में किसी परेशानी में फंसे आपने हैं, अपने वो you नर्व्स need को to काबू come में up with a smile and say कि like आज जो है ना मैंने ये अचीव करना है। ये In चीज। every meeting you should be the person that should not be dead, and you should be the person that should make sure कि सारे जो है ना हाँ आपके साथ साथ बिल्कुल चल रहे हैं। ट्रू। वो असल में ये होता है ना कि लीडर ही अगर डेड हो जाए तो पूरी टीम परेशान हो जाती है, उसको लगता है कि समथिंग बैड इज हैपनिंग। तो वैसे I completely agree. एग्जैक्टली। और आजकल का जो मतलब लीडर बनना ना आसान काम नहीं है, बिकॉज योर ओन लाइफ स्ट्रेसर्स एंड देन योर वर्क स्ट्रेसर्स एंड देन पीपल स्ट्रेसर्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक मैं इसको कहती हूँ कि ये सुसाइड बॉम्ब है एक लीडर के लिए, जो उसने ना अपने आप को ना थोड़ा सा जिससे निकालना होता है, डिटॉक्स करना होता है। हमारा अगला जो टॉपिक है ना, वो इसका सब टॉपिक वो मेंटल हेल्थ के ऊपर ही है। वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ। मेरे ख्याल से जेन जी ने अब आके वैल्यूज को, मेंटल हेल्थ को, पीस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगे हैं देन मनी। हमारे से पहले जो मिलेनियल्स थे वो मनी के ऊपर ज्यादा फोकस थे, वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के। हम जो लोग हैं ना, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत पहले है बाद में पैसा है। आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली वैल्यू एज वेल। तो इसमें मतलब हाउ रिमोट वर्क हैज इम्प्रूव्ड और हार्म्ड वर्क लाइफ बैलेंस, क्वेश्चन वन, and how organizations are supporting their mental well-being in the middle of the transitions to the future of work. बिल्कुल makes sense, बिल्कुल makes sense। अच्छा, so if I tell you my idea of this, let's start with the remote work, like in terms of harming or improving work-life balance। हाँ So I feel कि it basically my answer would be कि both।
it has Both. basically blurred boundaries as well, and at the same time, it has offered flexibility for people as well. So the Very idea nice. कि people अगर वो देखते हैं ना कि एक चैलेंज देखते हैं in terms of setting maybe digital boundaries या a very कह लें clear work-life balance, so that is definitely over there क्योंकि there's technically no switch off button over there. और आपको ना एक अपना mental एक time रखना होता है कि यार today when I log on to work तो इतने hours मेरे होने चाहिए क्लियर कट सोचने के इतनी देर में मैंने अपना काम एक्सिक्यूट करना है और इसके बाद मैंने ये सबमिट करा के लॉग ऑफ करना है. लॉग ऑफ So, करते इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट स्केल द कंपनी इज ऑन. लाइक इफ इट्स इन अ स्टार्टअप तो फिर तो you have to forget कि there is an 8-hour shift. You have to work 8, अच्छा 10, 12, अच्छा 11 hours. इंटरेस्टिंग क्योंकि वो स्केल अप हो रहा होता When है तो you're उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है. precisely, हाँ precisely. लेकिन ये होता है कि for a lot of people that is very rewarding. उसमें ये Yeah. होता है कि क्योंकि they get a chance to experience कि from the starting side company की development कैसे होती है. तो for them it's definitely कि वो एक portfolio उनका बन रहा होता है. पोर्टफोलियो बनता है बिल्कुल. About maybe how organizations support mental well-being, तो उसमें मेरे जहन में ये होगा कि I think frequent check-ins help a lot. Offering a flexible work schedule, your flexible working model is going to help a lot. And maybe in terms of the most important thing would be कि you need to train your managers to recognize कि burnout कब हो रहा है. हाँ If your top performer is not performing well, instead कि आप उसको दफ्तर में बुला के झाड़ना शुरू कर दें, झाड़ना you need to शुरू कर focus दें. हाँ on the reasons कि वो क्यों नहीं अच्छा perform क्यों नहीं कर रहा. अच्छा Like परफॉर्म वो कर. कोई personal reason है, like you can't do anything about that, लेकिन you can just support them. Maybe कोई work life balance नहीं उसे maintain हो रहा, वो 12 14 घंटे की shift कर रहा है हाँ और maybe इतना needed ही नहीं है उससे. He needs to like optimize his work. You need to help him or her with that. So I think this is something जो मेरा point of view पॉइंट ऑफ व्यू है. नहीं नहीं आई थिंक परफेक्टली यू हैव लेड आउट ऑल द एस्पेक्ट्स टू दिस. और प्लस ये भी है कि जो भी हमारी वर्कफोर्स है फ्यूचर वर्कफोर्स हसान ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अपनी स्पेस मांगने वाली है तो उनको तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते. ये जो जेन अल्फा आनी है ये जो आगे वाली जेन जी के बाद जो मैंने देखा है मेरी अपने सिबलिंग्स हैं छोटे उनके वे ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन में फ़र्क है. हम लोग थोड़ा लिहाज कर लेते हैं वो लिहाज नहीं करते और वो कॉर्पोरेट में भी नहीं लिहाज करेंगे क्योंकि वो जनरेशन डिफरेंट टाइम की है. तो इस पे ऑर्गेनाइजेशंस को सोचना पड़ेगा और स्पेशली एचआर का काम है कि हमने किस तरह लाइन अप करना है चीज़ों को. तो आई थिंक दैट्स एन एड ऑन इंफॉर्मेशन पीस आई कैन ऐड हेयर एज वेल. अच्छा इसमें जो एक और चीज़ जिसको हम अब क्लोज ऑफ कर रहे हैं अपना टॉपिक और हमने मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को हमने टच किया है थोड़ा थोड़ा. अच्छा इसमें मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्क डिफरेंट इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. अगर तो आपको कोई कोलीग से कोई आइडिया मिला है कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि पाकिस्तान इज लाइंड अप और पाकिस्तान इज डिफरेंट. अच्छा, so it would depend on the industry we're talking about. For maybe each specific industry, it's very different. अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो we know that we're technically a developing country and it's less about automation and more about digital inclusion and access at this point. अभी like हम वो जो है ना automation वाली section पे काफी हद तक हम आ गए हैं लेकिन काफी हद तक we need to कह लें get there. In terms of जनरल वर्किंग अपॉर्चुनिटीज आई थिंक फ्यूचर ऑफ वर्क को अगर हम डिफाइन करें बीइंग ऑनेस्ट फातिमा लाइक आज से 5-6 साल पहले व्हेन वी जॉइंड द यूनिवर्सिटी तब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आपके पास होती थी, इतनी ग्लोबलाइजेशन नहीं होती थी जितनी आज के दौर में. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. वी हैव ऑलवेज हर्ड कि मतलब एटलीस्ट आई हैव ऑलवेज हर्ड कि नौकरी करने के लिए आपको सिफारिश की जरूरत होती है. अब लाइक मुझे ये बताएं कि ये वाली चीज जो है ये एप्लीकेबल तो नहीं है when you're talking to maybe a global CEO or a global remote company. References work and getting good networking always helps. Good networking always. Definition of general working principles and the general future of work, I think Pakistan is en route getting success when we're talking about these specific ideas. We are adapting with a lot of things out there. इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. आई थिंक ये एक बात अच्छी मेंशन की है कि यहाँ पे ज़रा ना वो सेट कल्चर था कि सिफारिश पे जॉब्स लगती थी
इवन व्हेन आई ग्रेजुएटेड, सो माय फादर वाज लाइक यू नो मैं सिफारिश लगा दूं, मैं उनको ऐसे करके दी थी। मैं कह रही हूँ मैंने 4 साल मेहनत की है, मैं अपने आप को खड़ा करूंगी, जिस तरह भी मुझे कोई लो प्रोफाइल जॉब भी मिलती है, इट्स फाइन। मुझे ये तसल्ली होगी कि मुझे अपने स्किल सेट की वजह से मिली है। सिफारिश वाली पे जाऊंगी तो हमेशा जेन में ये रहेगा कि पता नहीं आई वाज मेड फॉर दिस और नॉट और समथिंग लाइक दैट। बट वो गवर्नमेंट इदारों में ना ज़्यादा मेरे ख्याल से ये अभी भी चलते हैं। सीएसएस पे लोग कहते थे सिफारिश से लोग लग जाते हैं, इट वॉज अ मैटर ऑफ डिबेट। मुझे नहीं पता, लाइक मेरे घर में सीएसएस की बड़ी बातें होती हैं, अपेरेंटली दे लव गवर्नमेंट जॉब्स और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सीएसएस इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज फॉर द पीपल, और उसमें भी बहुत ज़्यादा आगे पॉलिटिक्स और टॉक्सिसिटी है, जो कि यू नो अभी रिसेंटली आई थिंक एक वो जो पीएसपी था अदील, ही यू नो कमिटेड सुसाइड इस्लामाबाद में जो था, एंड ही वॉज अ वेरी रिनाउंड सीएसएस ऑफिसर। सो यू नो मेंटल हेल्थ इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर गवर्नमेंट वेदर नॉन गवर्नमेंट, यू नीड टू स्टे इंटैक्ट इन लाइफ, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो आप वो फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही भी होती हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नहीं, आई एग्री विद यू ओवर हियर। ये वाली बात बिल्कुल इट्स वेरी वैलिड कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द बाउंड्रीज आर एंड यू नीड टू फॉलो दोस स्पेसिफिक बाउंड्रीज। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक आइडिया दैट यू शेयर्ड अभी ओवर हियर कि कह लें सिफारिश वाली बात, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरिएबल थिंग ओवर हियर। यू नोटिस कि हम लोगों का जनरली भी वर्क कल्चर या लाइक ओवरऑल काम करने का तरीकाकार ये होता है कि instead of us posting, Bill Frizz, if you need a video editor for your podcast, instead of just posting on LinkedIn or posting a job, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? किसी दोस्त के, किसी से पूछ लो कि यार किसी को जानते हो, रेफरल कोई मांग लो, ज्यादा इजी है। तो आई गेस वो जो एक आदत है ना आपके पास, एक वांटेड किस्म की एक वो सिफारिश आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही बेनिफिट आ जाता है कि आपको पता है यार, चले मुझे अहमद ने कहा है, मुझे अली ने कहा है, मुझे मुर्तजा ने कहा है कि ये बंदा अच्छा है और ये रिलायबल है, व्हाई नॉट जस्ट गो विद दैट पर्सन, व्हाई डू आई नीड टू पुट इन द एफर्ट कि मैं जाके बस इसमें कभी कभार ये भी होता है ना हज़ाम, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो हर जगह होती है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। Sometimes people defame good resources just not to let them get good opportunities. तो इसका bad impact भी है फिर definitely, कि without filtering out, without on the words, people just say यार ये बंदा अच्छा नहीं, maybe वो बंदे की interaction उस बंदे से ना सही हो, बाकी वो ठीक हो, तो वो filter out करना बहुत important है। तो उसमें you have to go by the documentation, उस बंदे की करियर जर्नी, वो कहाँ से चला है, वो कहाँ। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा फिसे हैं अपनी कुछ इंटरेक्शंस की वजह से, और जिनके साथ वो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल यू नो पीपल थे, तो उन्होंने उनके बारे में जब कहा तो उनके जो चांसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ कम होते गए। तो आई थिंक इसको भी हमने एक न्यूट्रल वे से, क्योंकि एचआर को न्यूट्रल होना पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर नॉट डूइंग, क्योंकि हम लोग अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट है और अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट हमेशा ही न्यूट्रल होता है, तो ही चीज़ें लाइन अप होती हैं। सो बिल्कुल ऐसे ही है, न्यूट्रल और फेयर, आई थिंक ये चीज तो बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट यू जस्ट सेड, आई कंप्लीटली एग्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपकी कह लें वो पॉजिटिव फेम होती है तो फिर नेगेटिव फेम भी होती है। लाइक आई रिमेंबर वी वर हायरिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी ने मुझे कहा था कि ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है ना, किसी ने रेफरल दिया था या किसी से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कहते यार ये बहुत ही जो है ना लाइक खड़ूस है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा था लाइक डिफाइन दैट, तो कहते नहीं ये बात बूत कोई नहीं करता, इसकी कम्युनिकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वी स्टिल एंडेड अप टॉकिंग टू दैट गाय, फिर हमें बाद में आइडिया हुआ था कि बिल्कुल, तो वी स्टिल वांटेड टू सी कि इतना अच्छा सीजीपीए, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स, व्हाई नॉट गिव दैट पर्सन अ शॉट। तो टर्न्ड आउट कि दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। अब ये है कि अब किसी की नेचर इस तरह की वो ज्यादा बात नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं या वो कोई इशू है। तो और मेरे ख्याल से यही हो सकता है आप इस तरह के होगे, वो आपसे बात ना करना चाह रहे। वही मैं कहती हूँ ना कि देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी, तो यू हैव टू चेक बीइंग एन एच। मैं ये कहती हूँ कि हम एचआर वाले डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि हमने ना लोगों के साइकोलॉजी को समझना होता है कि ये किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, मैंने इसको किस तरह हैंडल करना है। तो अपेरेंटली तो ये नोटिस वो लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत सारा वो चलता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यूज ऑलवेज फ्लिप द कॉइन।
always हाँ ask them a loose question that will make them open up, and वहां से आपको उनकी reality का पता चलता है. रियलिटी का पता चल जाता है. परफेक्ट है. अच्छा हसाम, वी आर गोइंग टू एंड दिस एट अ वेरी पॉजिटिव नोट. इट वाज लवली हैविंग यू, एंड जो हमारी डिस्कशन गई है बहुत ही पॉजिटिव वे में ट्रांजिशन हुई है टुवर्ड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर आवर ऑडियंस टू नो कि फ्यूचर ऑफ वर्क किस तरह चेंज हो रहा है. एंड पीपल लाइक यू हु हैव रेलिवेंट एंड रियल इंसाइट्स, वो ज़्यादा हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं देन कि हम ये जो बुकिश नॉलेज, जो अभी आपने कहा कि बुक से पढ़ना और रियल वर्ल्ड में बहुत फ़र्क है. तो अब एक छोटा सा एंटरटेनमेंट राउंड है जो कि हम पॉडकास्ट रैप अप करने के लिए करते हैं. ये है रैपिड फायर राउंड. इसमें सिंगल क्वेश्चंस मैं आप पे थ्रो करूंगी. ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे गेस्ट को तंग करने में बड़ा मजा आता है. दैट्स माय बिगेस्ट थिंग टू ऐड ऑन हियर. तो लेट्स डू दिस. अच्छा, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वुड यू हायर योर बेस्ट फ्रेंड और योर बिगेस्ट कंपेटिटर? अच्छा, in this scenario my best friend is very talented, so my best friend. चलो गुड है, नाइस यार. वो तो बेस्ट फ्रेंड सुनेगा तो बड़ा खुश होगा जो भी है. वो करूँगा, उसको वीडियो शेयर करूँगा क्योंकि लाइव होगी. डन है, डन है. ये तो सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी फिर तो. इट्स गुड. नहीं, श्योर. अच्छा, डेफिनेटली. अच्छा, सो वुड यू रादर HR मेक अ पॉलिसी फॉर अनलिमिटेड स्नैक्स और अनलिमिटेड वेकेशन डेज? I think unlimited vacation days is going to be a very open sort of thing. लेकिन उसके अंदर it's not practical unfortunately. Exactly. आपने preference पूछा, मैंने preference आपको बता दी, लेकिन obviously it's not practical. लेकिन असल में ना स्नैक्स वाला ही अप्लाई होगा क्योंकि वेकेशन डेज तो आपको ख्वाब में मिलेंगे इतने ज्यादा. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, सो वुड यू रादर हैंडल अ टीम दैट्स सुपर क्रिएटिव बट chaotic और सुपर डिसिप्लिन्ड बट बोरिंग? अच्छा, आई थिंक कि बीइंग वेरी, वो कह लें, मूविंग और वो क्रिएटिव वाली चीज को लाइक रिकग्नाइज करना, आई थिंक आई वुड गो फॉर द क्रिएटिव एंड chaotic टीम. अच्छा, chaos एक ऐसी चीज होती है दैट यू कैन बाद में जो है ना, यू कैन स्ट्रीम दैट आउट एंड यू कैन लाइक ऑटोमेट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड उसको कर सकते हैं. बिल्कुल. बट जो है ना कि लाइक पर्सनालिटी अगर डेड हो तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते. वो मतलब वो मोटिवेशन ना मर जाएगी आपकी संडे की रात को कि यार मैंने सुबह काम पे जाना है. So in the end, discipline होना is like, you know, not a good thing. It becomes boring. नहीं, I think होना चाहिए. But with certain extent होना चाहिए. एक certain extent में होना चाहिए. Like discipline की definition पर हम वो ना रखें ना, boring होना ना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है. So would you rather implement casual pajama dress code or mandatory suit and tie in the office premises? अच्छा, I am not a person that likes, वो कह लें, very casual clothing. तो ये कि मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो like shirt and tie वाले उसके ऊपर रखूंगा भैया. I love that. अच्छा, फॉर्मेलिटीज होती है. बिल्कुल. Perfect. I've always dreamt of working on Wall Street, तो फिर इसीलिए Oh wow, that's good यार. It's amazing. और वॉल स्ट्रीट वाले तो they are like, you know, walking with time and, you know, और walking with so much formal attire. तो वो ऐसा उनको देख के ऐसा लगता है कि बड़ा कोई सीरियस काम हो रहा है भाई, कुछ हो रहा है. ऐसे ही यार. वो if you get a chance to see वो any specific movie from the 90s that featured any Wall Street people, हाँ, तो मैंने देखी you always have that admiration for them. Admiration. And उनकी लीग ही और है. ये तो बात मैं भी मानती हूँ. बिल्कुल, I agree. अच्छा, so last question ये है कि would you face a panel interview, 10 people grilling you, or do a public presentation for 200 employees? अच्छा, I have never been afraid of presentations, so I would always go for a presentation. तो grilling से बचना. I don't mind either वैसे technically, लेकिन presentation में बहुत आराम से दे देता हूँ. अच्छा, when somebody grills you, how do you handle it, by the way? कोई होते हैं ना एक बंदे कभी कभार किसी से अनबन हो जानी, इसने आपको grill कर देना, उसको कैसे आप perceive करते हो? Recognize कर लें. Start making notes of what they're saying. अच्छा. For 2 minutes, just like stop and like listen to what they're saying. मेरा हमेशा ये आइडिया होता है that people don't generally like, वो ये होता है कि मे बी वो अगला जो बात करे सच ही कह रहा हो सकता है हमें वाकई कोई खामी हो क्योंकि लाइक आप रिपीटेडली कर रहे हो और लाइक आप भी तो किसी की बात से चिढ़ ही जाते हैं, तो बात सुन लें 2 मिनट के लिए, सुन लें या कभी कभार वैसे भी व्हाट दे आर सेइंग. अच्छा, एंड उसके हिसाब से ना आप उनको उनकी मुकम्मल बात सुन लें, फिर उसके बाद ना एक एक पॉइंट की बेसिस पे काउंटर करें इफ यू हैव any specific information to counter to them. Instead of just like वो बात आपसे बहस करें फजूल किस्म की, आप आगे से उनसे लड़ पड़ो, उन्होंने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हो,
कोई वो नया बिल्कुल मसला हो, उससे बेहतर कि तसल्ली से बात कर लो, मसला हल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की इंटरेक्शन में ना मैंने ये देखा है कि कभी कभार बिला वजह ही बंदा ना फिस जाता है ब्लेम गेम्स के अंदर, और उस बंदे को खुद ही नहीं पता होता यार ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। इसको वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कॉर्पोरेट में भी बड़ी देखी जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ह्यूमंस हैं वहाँ पे मसले भी हैं, फायदे भी हैं। वो कहते हैं ना, एक जगह ही काफी ज्यादा बर्तन रखो ना तो वो खड़कते हैं आपस में। तो लोगों का भी यही हिसाब है कि जब आप साथ काम करते हो लड़ाइयाँ भी होंगी, रिवॉर्ड्स की बातें भी होंगी, डिनर्स भी होंगे, बट देन अगेन दिस इज लाइफ आई गेस। आई एग्री। तो जाते जाते हसाम को एक लाइफ टिप दे दो यार कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए, और वन थिंग यू हैव फॉलोड रिलीजियसली टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। अच्छा, आई थिंक कि कंपैरिजन जो है ना, दैट्स गोइंग टू किल यू। कंपैरिजन, अंदर से ना वो आपको तोड़ना शुरू इट्स अ हो थीफ जाएगा, ऑफ दैट इज जॉय। समथिंग। हम्म हाँ, इट इज डेफिनेटली अ थीफ ऑफ जॉय, आई कंप्लीटली हम्म एग्री। हम्म एंड दूसरी आई थिंक दो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, इसी का फॉलोइंग पॉइंट ये आ जाता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो आई थिंक किशोर कुमार का गाना था, किसका था, कि कुछ अच्छा, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम हाँ है बिल्कुल, कहना। आई रियली लाइक दैट तो सॉन्ग। अच्छा, पुराने गानों में ना आई हकीकत लव ज्यादा दैट थी। सॉन्ग। दे वर वेरी आई रियल, एग्री, बेस्ड ऑन लाइफ। हाँ, अच्छा, क्या गाना याद करा सही दिया। बात है। तो सही है। नहीं नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री। मैं तो खैर काफी सुनता हूँ इस तरह के गाने, तो फिर लाइक मेरे लिए तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन एज वेल, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू विल नेवर मेक पीपल हैप्पी। डेफिनेट कभी भी आप लोगों को खुश नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, व्हाट बिल्कुल। मैटर्स इज कि यू शुड बी ऑन राइट, एंड ये है हम्म कि आप जो है ना किसी को डिलिबरेटली हम्म कह लें, उनकी उनकी खुशी ना छीन रहे हो किसी खुशी ना तरीके से, जी, अगर वो आपके हाथ के अंदर है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट मेक श्योर कि यू आर बीइंग फेयर, यू आर बीइंग रैशनल। हम्म बाकी ये कि आई थिंक कि मतलब यू शुड स्टॉप थिंकिंग कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हाँ, वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। if you start focusing on getting just improving yourself, तो फिर you get out of that problem. A lot of HR folks have that problem कि यार वो मुझे पसंद नहीं करेगा, या मतलब टीम हाँ, नहीं मुझे ये अच्छा है, पसंद ये है, करेगी। ये है। तो आई थिंक यू नीड टू स्टॉप अच्छा, पता है anything like that. मुझे भी एचआर में जाके ना ये बड़ी प्रॉब्लम हुई, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, क्योंकि एचआर वालों को ना जरा ज्यादा थोड़ा सा मिलता है हेट वगैरह। हालांकि हमारी गलती नहीं होती, ऊपर लीडरशिप से चीजें आ रही भी होती हैं, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटेजिकली। बट ये है कि विद टाइम आई ऑल्सो लर्न के यू कैन नॉट मेक एवरी वन सेटिस्फाइड, और वो बिला वजह आप स्ट्रेस लेते हो और वो आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट कर रहा होता है। इट्स बेटर कि आप एक स्ट्रेटेजिक वे में चलो, एंड जो खुश हैं, जो नहीं है वो उनका मसला है। It's their unhealed part which is disturbing them. It's nothing related to you. So that is also I agree. important. So मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक, मुझे बहुत शौक है कि मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बोलूँ और साइकोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर बोलूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिगेस्ट एडवोकेट फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें साइड पे हैं और आपका ज़हनी सुकून साइड पे है। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट।